تاجر برادری اور بیوروکریسی نیب سے آزاد، کابینہ منظوری کے بعد صدر نے بھی دستخط کر دیے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس نافذ العمل ہو گیا۔ وزراء اراکین پارلیمنٹ افسروں کے خلاف کارروائی کے لیے اسکروٹنی کمیٹی کی منظوری ضروری۔ چیئرمین نیب کے اختیارات انتہائی محدود کر دیے گئے۔ نیب کی کارروائیوں کی معترف حکومت نے ہی نیب کے پر کاٹ دیے۔ قانون میں ترمیم کی سمری 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ حکومت نے نیب کی جانب سے عوامی عہدیداروں اور بیوروکریسی کے خلاف غلط مقدمات قائم کرنے کا اقرار کر لیا۔ دستاویز کے مطابق نیب پروسیجرل کوتاہیوں پر کیسز بنا کر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا۔ ٹیکس اور لیوی کے معاملات میں بھی مداخلت سے مشکلات پیدا ہوئی۔ ملک بھر میں گیس کا شدید بحران، چولہے ٹھنڈے تو صنعتوں کا پہیہ بھی جام۔ شہری صورتحال سے پریشان۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 7 روز بعد کھلنے والے سی این جی اسٹیشنز 8 گھنٹے بعد ہی بند۔ سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر۔ دفاتر اور کام پر جانے والے شہری پریشان۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع اور رد و بدل کا امکان۔ وزیر اعظم عمران خان آج پشاور کا اہم دورہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے پارٹی رہنماؤں اور اراکین اسمبلی کی ملاقاتیں بھی متوقع۔ ترکی میں کشتی حادثے میں 2 پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کا معاملہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ ترک حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جاں بحق پاکستانیوں کی شناخت کے بعد لواحقین سے رابطہ کیا جائے گا۔ کشتی میں سوار 71 افراد میں سے 25 پاکستانی تھے، 23 کو زندہ بچا لیا گیا۔ کوئٹہ میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ 20 کلو گرام کا تھیلا مزید 10 روپے مہنگا۔ 3 ماہ کے دوران آٹے کی قیمت 15 روپے فی کلو تک بڑھ گئی۔ بلوچستان حکومت نے کسی صوبے سے گندم نہیں خریدی۔ آٹے کی قیمتیں بڑھنے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سال 2019 پاکستان ریلوے کے لیے حادثات کے حوالے سے بدترین ثابت ہوا۔ رواں سال کے دوران ٹرینوں کے 150 حادثات میں 133 افراد جان سے گئے، 140 زخمی ہوئے۔ سب سے زیادہ حادثات لاہور ڈویژن میں ہوئے۔ محکمے کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پیار بھرے 2 شرمیلے نین۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے لازوال گیت تخلیق کرنے والے نامور نغمہ نگار اور منفرد شاعر خواجہ پرویز کا آج 87واں یوم پیدائش۔ خواجہ پرویز نے 10,000 سے زائد فلمی نغمے تحریر کیے۔ بیک وقت اردو اور پنجابی میں گیت نگاری پر کمال حاصل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 92 نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاق اور سندھ کے درمیان خلیج مزید بڑھنے لگی ہے۔ اب کی بار وجہ کیا بنی بتائیں گے اسی بلیٹن میں۔ اور ناظرین، میں ہوں اشارت سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ سندھ میں گیس بحران کا ذمہ دار کون؟ وفاق اور سندھ حکومت آمنے سامنے، ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر عمر ایوب نے گیس بحران کی ذمہ داری پی پی حکومت پر ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ سندھ میں گیس بحران صوبائی حکومت کا پیدا کردہ ہے۔ پی پی حکومت نے پائپ لائن تعمیر کرنے کے لیے اجازت نہ دے کر زیادتی کی۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے رد عمل میں کہا کہ وفاقی وزیر اپنی ناکامیوں اور نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ سندھ میں گیس بحران وفاق کا پیدا کردہ ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے گیس اور بجلی بحران پیدا ہوا ہے۔ سندھ میں گیس بحران کا ذمہ دار کون؟ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان نئی جنگ چھڑ گئی۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب نے گیس بحران کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ سندھ میں گیس بحران حکومت سندھ کا پیدا کردہ ہے۔ صوبائی حکومت نے پائپ لائن تعمیر کے لیے رائٹ آف وے نہ دے کر زیادتی کی۔ سی این جی شٹ ڈاؤن جو یہاں پہ ہو رہی ہیں یا انڈسٹری کو، یہ بالخصوص اس کی جو بنیادی
जो वजह है वो ये है कि हुकूमत सिंध, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सुई सदर्न गैस पाइपलाइन को रास्ता राइट ऑफ वे जो है वो काफ़ी अरसे से नहीं दिया। 2 पाइपलाइंस पे काम इस वक्त जारी है। जो हुकूमत सिंध है वो LNG लेने के लिए तैयार नहीं है। LNG मिल जाए तो यहाँ पे हालात जो हैं सिंध में गैस के वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। विफाकी वजीर के बयान पर रद्दमल देते हुए वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का कहना था कि विफाकी वजीर अपनी नाकामियों और नाअहली पर पर्दा डालने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी पाइपलाइन बिछाने की इजाजत के हवाले से मुझसे कोई राब्ता नहीं किया गया। सिंध में गैस का बहरान विफाक का पैदा करदा है। गैस बहरान पर बार बार विफाकी हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई लेकिन सुनवाई न हो सकी। हुकूमत रुकावट है तो ये बड़ी ज्यादती की बात है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इल्जाम लगाने से तो फायदा नहीं। ये उनकी अपनी नाकस कारकर्दगी और नाअहली है एनर्जी डिपार्टमेंट मरकजी हुकूमत की होगरा की, जो कि मतलब इन्होंने ये बहरान पैदा कर दिया। मुझे 7 साल हो गया है मिनिस्ट्री में, तो मुझे तो कभी भी इन्होंने राब्ता नहीं किया। अब वो जब वो मसला आ गया बहरान का, जब गैस की कमी हो गई तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने भी गैस बहरान की तमाम जिम्मेदारी विफाक पर डाली। कहा कि गैस फराहमी का सवाल उमर अयूब को बुरा लगता है। हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से महंगाई हुई, गैस और बिजली बहरान पैदा हुआ। नालायकी और नाअहली सिंध पर डालने से जान नहीं छूटेगी। वफाकी हुकूमत के दोनों इदारे हैं, सुई सदर्न गैस और सुई नदर्न गैस, और उनकी सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आती है। अब अगर ये सवाल जो है उमर अयूब साहब को बुरा लगता है तो लगता रहे। आपकी नालायकी और नाअहली की वजह से लोग महंगाई की मुसीबत में हैं, लोग गैस की शॉर्टेज में हैं, आपने बिजली महंगी कर दी है। अपनी नालायकी और नाअहली को सूबाई हुकूमत के खाते में डालने से ये आपकी जान नहीं छूटेगी। विफाक और सिंध एक दूसरे पर मलबा तो डाल रहे हैं लेकिन ताहाल मामले का हल नहीं निकाला जा रहा। मुश्किलात से 2-4 शहरी कहते हैं हुकूमतें इल्जाम तराशियों की बजाय मसाइल हल करें। तो नाज़रीन, 2 हुकूमतों की लड़ाई में अवाम पिस कर रह गए हैं। शहरी कहते हैं कि शदीद सर्दी है और गैस बहरान है कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। सिंध हुकूमत विफाक और विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल रही है। हम जाएं तो किधर जाएं? ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन मतलब है कि प्रॉब्लम तो एक नेशन का है ना, तो इसको तो दोनों का मिलकर इंटरेस्ट लेना चाहिए, इसको करना चाहिए। देखिए दोनों सूरतों में खरबूजा छुरी पे गिरी है, छुरी खरबूजे पे, नुकसान पब्लिक का ही हो रहा है। ये तो पुराना है, हमें एक दूसरे पे ब्लेम करना, होता कुछ भी नहीं है। आवाम को सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, फेडरल और सिंध दोनों मिलके। तो अभी किसको फरियाद करें हम, बताएं आप? कोई तो हमारा सुन रहा नहीं है। जितना भी बोले किसी का कोई लेना देना ही नहीं है हमसे। गैस की लोड शेडिंग की वजह से बहुत मुश्किलात है कि हम सुबह चाय भी नहीं पका सकते और लोड शेडिंग भी है और सर्दी भी है। गर्मी में बिजली का मसला है और सर्दी में। कराची में 1 हफ्ते बाद खुलने वाले CNG स्टेशन आज सुबह 6 बजे से दोबारा बंद पड़े हैं, जबकि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात शराज अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध में गैस बहरान संगीन हो गया। सर्दी में इजाफे के साथ ही सुई सदरन का प्रेशर सिस्टम भी जवाब दे गया। गाड़ियां, बसें, रक्शे कैसे चलाएं, सबको परेशानी लग गई। CNG स्टेशन 1 हफ्ते बाद खुले, लेकिन 8 घंटे बाद दोबारा ताले लग गए। CNG फिलिंग स्टेशन को गैस की फराहमी बंद होने के बाद सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल से इंतहाई कम रही। बस स्टॉप पर मुसाफिर इंतजार में खड़े रहे और दस्तयाब बसों पर शहरी लटकते हुए नजर आए। बहुत मुश्किल है बेटा, जाहिर है टाइम पे नहीं पहुंच पाते। रिक्शे वालों से हम बात करें तो वो पैसे ज्यादा लेते हैं। वैसे भी गाड़ियों के किराए इस कदर बढ़ गए हैं तो गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है। बच्चे बहुत मुश्किलात का रास्ता है, आगे पीछे गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, आवाम रोडों पे खड़ी है, आवाम दिक्कत खा रही है। CNG बंद होता है, कितने दिनों से बंद होता है। इस वजह इंसान जब काम पे जाते हैं हमें 2-2 बसें करनी पड़ती है, जिधर एक करनी होती है उसकी वजह से 2-2 करनी पड़ती है। काफी दिनों से बंद है। दूसरी जानिब रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल पर गाड़ी चलाना वारे में नहीं आ रहा। कारोबार तो बहुत मुतासिर, जिसको कराएगा बोलो भाई पेट्रोल है, बोलते नहीं चलाओ, घर पे खड़ा कर दो, क्या करे। गरीब आदमी के लिए हुकूमत बिल्कुल नाकाम रहा। गरीब आदमी रोज बरोज पीट रहे। अल्लाह ताला इन लोगों को सबको नेक हिदायत दे भाई। इन लोगों ने बड़ा परेशान करा हुआ सब, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या वफाक हो, वो दोनों ने गरीब लोगों का खून चूसा हुआ है। बस गरीब लोगों को परेशान कर रहा है, बाकी और कोई। सुई सदर ने कम प्रेशर के बाइस घरेलू सार्फिन को पहली तरजीह करार दिया है, जबकि CNG स्टेशन को गैस की फराहमी का फैसला प्रेशर देखने के बाद किया जाएगा। कैमरामैन अली इमरान के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज, कराची।
नाज़रीन, सिंध ही नहीं सूरत हाल मजमूई तौर पर ही खराब है। सर्दी में इजाफा होते ही सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गैस बहरान में भी इजाफा हो गया। सुई नॉर्दर्न की तरफ से पंजाब में इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को गैस फराहमी बंद करने के बावजूद गैस का शॉर्टफॉल जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेब शाहिद की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न की जानिब से इंडस्ट्रीज और CNG सेक्टर्स को गैस फराहमी बंद करना भी किसी काम न आया। सर्दी आते ही गैस छूमंतर हो गई। घरों में गैस की लोड शेडिंग मुसलसल बढ़ने लगी। लाहौर के इलाके बाटापुर, हरबंसपुरा, कैंट, सब्जाजार, वादत रोड और नवाकोट के मुल्हिका इलाके शदीद मुतासिर हुए। इकबाल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप, गार्डन टाउन, फिरोजपुर रोड और मुस्लिम टाउन में भी गैस की बंदिश से शहरी परेशान हैं। शहर के बाद इलाकों में गैस तो आती है, लेकिन बराए नाम प्रेशर इतना कम कि कुछ पकाना नामुमकिन है। सुबह और शाम के औकात में गैस प्रेशर में कमी की वजह से शहरी परेशान हैं। सुई नॉर्दर्न गैस के मुताबिक कंप्रेसर का इस्तेमाल भी गैस के प्रेशर में कमी का सबब बन रहा है। आगे बढ़ते हुए बात अपोजिशन की, जो फिर एक पेज पर है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नैब ऑर्डिनेंस नैब न्याजी गठजोड़ का नाकाबिले तरदीद सबूत है। हुकूमत और दोस्तों की चोरी छुपाने के लिए NRO प्लस लाया जा रहा है। क्या पेशावर मेट्रो, मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस रुकवाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी बोले, नैब ऑर्डिनेंस हुकूमत का दोस्तों को बचाने का तरीका है। शहरी रहमान ने एक मरतबा फिर पार्लियामान को बाईपास करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अपोजिशन एक बार फिर एक पेज पर है। अपोजिशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नैब ऑर्डिनेंस हुकूमत का अपने दोस्तों को बचाने का तरीका है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वफाकी हुकूमत पर इल्जाम आयद कर दिया है। उनका यह कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। नैब ऑर्डिनेंस नैब न्याजी गठजोड़ का नाकाबिले तरदीद सबूत है। ऐसा बयान आया मरियम औरंगजेब की जानिब से। उनका यह कहना था कि हुकूमत अपने दोस्तों की चोरी छुपाने के लिए NRO प्लस ला रही है। इसी हवाले से देखिए यह रिपोर्ट। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपोजिशन जमातें यकजुबान। लीगी तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान सवाल उठाया। वजीर आजम इमरान खान पेशावर मेट्रो, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर मुकदमात में नैब तफ्तीश रुकवाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, लेकिन पेशावर मेट्रो के 1 खरब 25 अरब के खड्डे NRO प्लस से नहीं छुपाए जा सकते। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जैसे झूठे, चोर और करप्ट लोग NRO और इदारों को इस्तेमाल करके एहतसाब का रास्ता रोकते हैं। दूसरों से 40 साल का एहतसाब, लेकिन अलीमा बाजी, फैसल वावडा और जहांगीर तरीन को NRO दिया गया, जबकि अब अपनी हुकूमत और दोस्तों की चोरी छुपाने के लिए नैब गठजोड़ के जरिए NRO प्लस लाया जा रहा है। अपनी करप्शन को नैब ऑर्डिनेंस के जरिए छुपाना नैब न्याजी गठजोड़ का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी भी नैब ऑर्डिनेंस पर खुलकर बोले, इससे बड़ा सबूत मैं नहीं समझता कि किसी को और चाहिए कि ये जो नैब के ऑर्डिनेंस के जरिए कानून में तरामीम की गई हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि चंद इमरान खान के या PTI के जो फाइनेंसर्स हैं उनको नैब से बचाया जाए। शहरी रहमान ने ट्वीट में हुकूमत पर एक मरतबा फिर पार्लियामान को बाईपास करने का इल्जाम आयद कर दिया। कहा, कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, सेनेट इजलास 116 दिन से नहीं बुलाया गया। अपोजिशन की राहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी का कहना है कि वजीर आजम अपने लोगों को खुशखबरी दे रहे हैं, आप नैब से आज़ाद हो गए। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, ना ही सेनेट का। मरियम औरंगजेब ने कहा, पेशावर मेट्रो के 1 खरब 25 अरब के खड्डे NRO प्लस से नहीं छुपाए जा सकते। शहरी रहमान बोली, पार्लिमानी निज़ाम को बाईपास करके ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, उन्होंने मजीद क्या कहा है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहबर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकरम दुरानी ने जो है वो नैब पर भी तनकीद की और हुकूमत के ऊपर भी तनकीद की। अकरम दुरानी की जानिब से कहा गया कि नैब की जानिब से जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं वो बड़ी अजीब व गरीब हैं। एहसन इकबाल को बेज़ाब्तियों की बुनियाद के ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया गया, जबकि उन्होंने जब नून लीग की हुकूमत थी तो प्लानिंग डिवीजन के अंदर जो CPEC का मनसूबा था उसे चलाया था। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 6 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम जो है वो नैब की जानिब से लगाया जा रहा है, जबकि एक्चुअली जो मनसूबा है
वो 2.5 अरब का है। उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी की गिरफ्तारी को भी शर्मनाक करार दिया और उनकी जानिब से कहा गया कि शाहिद खकान अब्बासी को जो है वो फांसी गार्ड जैसे सेल में जो है वो रखा गया है। हुकूमत ने जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है, इस पर भी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये हवाओं का रुख जो है वो तब्दील किया जा रहा है। और वज़ीर जी बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ 92 न्यूज़ यूके की सालगिरह की मुनासबत से लंदन के रॉयल नवाब होटल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। मेहमान ख़ुसूसी लॉर्ड नज़ीर अहमद थे, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ हिना मलिक ने अदा किए। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। .92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह की मुनासबत से रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। लंदन के रॉयल नवाब होटल में एक अजीम और शान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लॉर्ड नज़ीर अहमद, मेयर ऑफ स्टेन मोहम्मद सादिक, डिप्टी मेयर एलिंग मुनीर अहमद समेत कम्युनिटी की नुमायां सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। सियासी और समाजी शख्सियत हिना मलिक ने तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक व इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तकरीब में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की गई और पाकिस्तान और बरतानिया के कौमी तराने भी बजाए गए। मेहमान ख़ुसूसी लॉर्ड नज़ीर अहमद ने 92 न्यूज़ यूके की पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए चैनल की कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यहाँ पे सारे चैनल्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो इसलिए क्योंकि आप लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। They do a wonderful job and they do a great service. Thank you, Ghulam Hussain, Awan and your team. Thank you very much. लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की नुमाइंदगी करते हुए प्रेस मिनिस्टर पाकिस्तानी हाई कमीशन मुनीर अहमद ने कहा, 92 न्यूज़ यूके ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की है। गुलाम हुसैन साहब ने मुझे इन्वाइट किया, साउथ हॉल के एक रेस्टोरेंट में एक प्रोग्राम था, तो मेरा ख्याल है वो पहला ही प्रोग्राम था जब उन्होंने एक फोरम सा मुनक्किद किया। तो पहले ही प्रोग्राम से मैंने कहा कि आप इस लंदन में एक वक्त आएगा कि आप सब चैनलों से आगे होंगे, और वक्त ने बता दिया है कि आज माशाल्लाह 92 ने इतनी तरक्की की है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये पता नहीं कितने सालों से लंदन में है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने 92 न्यूज़ यूके के कामयाब नशरियाती सफ़र पर बात करते हुए कहा कि इसके प्रोग्राम्स और न्यूज़ बुलेटिन गैर जानिबदार होते हैं। इस चैनल ने कम्युनिटी के मसाइल को सही मानों में उजागर किया। 92 न्यूज़ को 2nd एनिवर्सरी पे बहुत बहुत मुबारक हो। जब से 92 न्यूज़ पाकिस्तान में 5 साल पहले लॉन्च हुआ, उसके बाद यहाँ पे आया, बहुत सारी ख़बरें और बहुत सारी जो इनसाइड स्टोरीज़ पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर, और अभी जो इलेक्शन को भी आपने कवर किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं दिल की अता गहराइयों से 92 चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनकी दूसरी सालगिरह पे। यहाँ गुलाम हुसैन अवान साहब और उनकी टीम ने बहुत एक पॉजिटिव काम किया है और कम्युनिटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। कम्युनिटी के इश्यूज़ जो हैं उनको हमेशा सही तरीके से उजागर किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। चैनल 92 को मैं दिल की गहराइयों से आज मुबारकबाद देता हूँ उनकी आज की सालगिरह पर, और इसमें गुलाम हुसैन अवान साहब की बेहतरीन जो कारकर्दगी है उस पर उनको भी मुबारकबाद देता हूँ।
चैनल 92 को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ उनकी दूसरी सालगिरह के ऊपर, और फिनोमिनल काम कर रहे हैं पूरी टीम चैनल 92 की, और ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि लंदन की भी सारी न्यूज़ को, फीडबैक को कैप्चर कर रहे हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द होल टीम। मैं 92 चैनल की टीम, यूके को और पाकिस्तान की टीम को और यूके की को ख़ास तौर पे उनकी 2nd एनिवर्सरी पे मुबारकबाद देता हूँ। और मेरा ख्याल है कि मीडिया का रोल जो है डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में बहुत होता है, और 92 उसमें पूरी तरह शामिल है और कर रहा है। इसलिए इसकी टीम को दोबारा बहुत मुबारक, दूसरा साल कंप्लीट होने पे। 92 चैनल की दूसरी सालगिरह पे उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और जिस तरह यूके में ये चैनल माशाल्लाह इस जितने प्रोग्राम चला रहा है, सारे प्रोग्राम HD है, और दूसरा हर तबके को ये जो है उजागर करते हैं। जहाँ तक मजहबी प्रोग्राम हैं उनमें भी ये नंबर 1 है, और दूसरे जो इसके अलावा प्रोग्राम है जितने भी, उनमें भी ये नंबर 1 चैनल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में अल्लाह ताला इनको इसी तरह कामयाबियाँ अता फरमाए। 92 माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, और यहाँ जो है इनकी दूसरी सालगिरह हम इसको मुबारकबाद देते हैं। और इनकी टीम वाकई इस चीज़ की मुस्तक है, हकदार है। ये कम्युनिटी में इतना अच्छे से काम करते हैं जो अपनी फैमिली समझकर, तो हम समझते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता करे, हमारी दुआ है, और ये बहुत ज़्यादा तरक्की करे। मेरे ख्याल से 92 की सबसे बड़ी चीज़ है जो लोगों को ज़्यादातर पता नहीं कि ये HD क्वालिटी है, और होलोकॉस्ट जो टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, पाकिस्तान का कोई चैनल भी इस टाइम पे इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। हम 92 को इंशाल्लाह दूसरी जो सालगिरह इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। 92 इंग्लैंड के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और इसके लिए दुआ करते हैं कि मज़ीद इसकी नशो नुमा हो। मैं 92 न्यूज़ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और गुलाम हुसैन और उनकी सारी टीम वाकई मुबारकबाद की मुस्तक है। मैं TV 92 को अपने 2 साल यूके में मुकम्मल करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके यहाँ के टीम लीडर गुलाम हुसैन आवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो इनके ओनर्स हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेसिकली आपका चैनल माशाल्लाह हम देखते रहे हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है, और इट्स ऑलवेज़ रिफ़्रेशिंग न्यूज़ जो आपकी प्रोग्रामिंग है काबिल तारीफ़ है। मैं 92 चैनल को उसकी दूसरी सालगिरह पर इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूं, और उनको अप्रीशिएट करता हूं। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पता नहीं कहां से ख़बरें ला के हमारे सामने रखते हैं। और ये वाहद चैनल है जिसने 2 साल में बहुत ही क्विकली तरक्की की है। बहुत से चैनल्स हम देखते हैं, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कीप इट अप। सर बहुत बहुत मुबारक 92 चैनल को, इनकी न्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, और इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ 2nd इनकी बर्थडे के ऊपर। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे एंड कंग्रेचुलेशंस। प्रोग्राम में मारूफ गुलकार नवीद जिम्मी और इनकी टीम ने मेरे नगमे और गीत सुनाकर तकरीब की रौनकें बढ़ा दी। हाज़रीन की तफरीह के लिए दिलचस्प सवालात का सेगमेंट भी रखा गया। प्रोग्राम के इस हिस्से की मेज़बानी मारूफ रेडियो मेज़बान सादिया सादत ने की। शेख सरबुलंद ने खुद को सबसे तवील उम्र शख्सियत करार देकर इनाम समेटा, तो खालिद खान ने कायदे आज़म की सालगिरह का साल बताकर इनाम हासिल किया। इनाम हासिल करने वालों में एहसान बारी भी शामिल थे। आखिर में मेहमान खसूसी लॉर्ड नज़ीर अहमद ने दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ मिलकर केक काटा। इस दौरान नवीद जिम्मी ने एक बार फिर परफॉर्मेंस दिखाई, और यूं रोशनियों, खुशियों और नेक तमन्नाओं के साथ तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई। साथ ही रिपोर्टर सलीम साबरी और वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। कम्युनिटी की खातीन ने उर्से गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत अकीदत व एहतराम से मनाया, जिसमें खातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं डंडी से कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। तहरीके मुनहाजुल कुरान वुमेन लीग डैंडी और स्कॉटिश इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर के ज़रिए एहतमाम गौसिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में डैंडी, एडम्बरा, ग्लासगो से बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की, और पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत पर उनको खराज अकीदत पेश किया गया। महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर इदारा के तलबा ने मौजू से मुतालिक तकारीर की। महफिल में लंदन से तशरीफ लाई हुई मुनहाजुल कुरान वुमेन लीग स्कॉटलैंड की सदर हाफिजा तस्नीम बाबर कादरी ने गौसुल आजम की सीरत पर सेर हासिल गुफ्तगू की। जब हर शय रब को याद करती है तो क्यों कर मुमकिन है कि बंदा सारी कायनात से अफजल मखलूक होकर रब को याद ना करे। इसका रब को याद करना बंदगी है।
इस मौके पर मिनहाज सिस्टर्स स्कॉटलैंड के डिप्टी कोऑर्डिनेटर आयशा अहमद ने इंग्लिश में इजहार ख्याल करते हुए नौजवान नस्ल को तालीमात गौसे आजम से रोशनास करवाया। मिनहाज नात कौंसल डैंडी की हिना अहमद, बेजा जाहिद, फाइजा कासमी और दीगर ने हदिया नात और मिलादनामा पेश करके हाजरीन के दिलों को गरमाया। महफिल के इख्तिताम पर आलमी अमन खसूसन इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआ की गई और तबरक तकसीम किया गया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान और यूरोप समेत दुनिया भर में बसने वाले पीपल्स पार्टी के जाले बेनजीर भुट्टो शहीद की 12वीं बरसी के मौके पर तकरीबात का एहतमाम कर रहे हैं। ऐसी ही एक तकरीब का इनाकाद फ्रैंकफर्ट में भी किया गया है, जिसका मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ असगर मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी जर्मनी के जियालों ने अपनी शहीद लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खराजे अकीदत पेश करने के लिए इनकी बरसी का एहतमाम किया। सदर पीपल्स पार्टी जर्मनी सैयद जाहिद अब्बास शाह, नायब सदर अली अकरम समेत मिर्जा राशिद नसीम, सैयद शबीउल हसन जाफरी ने बेनजीर भुट्टो को जबरदस्त अल्फाज में खराजे अकीदत पेश किया। शुरका का कहना था कि मोहतरमा की जमहूरियत की मजबूती और बहाली के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं, जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का आज यौम शहादत था और हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तारीख़ का एक ऐसा अनमिट नकूश है और ऐसा वो उनकी हिस्ट्री में रहेगी कि उन्होंने दीन और दुनिया को जो है अपने लिए हासिल किया है। और मैं ये समझता हूँ कि उनको मिशन की कामयाबी के लिए बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अपने इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि आइन, जमहूरियत और इंसानी आज़ादी के लिए हम अपनी शहीद लीडर के फलसफे पर अमल करते रहेंगे। इसाले सवाब की इस तकरीब में कुरान ख्वानी की गई, खत्म शरीफ पढ़ा गया और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के अलावा सानहकार साज में शहीद होने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बख्शिश, बुलंदी दर्जात और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ की गई। तकरीब में शरीक जियालों ने अपने कायद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और इनके शाना बिशाना चलने का अज़म किया। पेरिस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के साबिक कोऑर्डिनेटर कामरान यूसुफ घुम्मन की जानिब से बेनजीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया। तफसीलात राजा हबीब की इस रिपोर्ट में देखिए। पेरिस के नवाही इलाके लाकोर्ने में बेनजीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के जियालों के अलावा कम्युनिटी की नुमायां शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कामरान यूसुफ घुम्मन और दीगर ने कहा कि शहीद बेनजीर भुट्टो की सियासी जदोजहद हमारे लिए मशले राह है और यही वजह है कि भुट्टो शहीद की तरह बेनजीर भुट्टो भी हमारे लिए आज भी जिंदा है। शुरका का कहना था कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान को बावकार, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहती थी और पीपल्स पार्टी के कारकुन मोहतरमा के अधूरे मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। शुरका का मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में एक बार फिर तेजी से मकबूल हो रही है और जल्द ही पाकिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। तकरीब के इख्तिताम पर शहीद बेनजीर भुट्टो के दर्जात की बुलंदी और पीपल्स पार्टी के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआए खैर भी की गई। सऊदी अरब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दीगर सियासी जमातों के अराकीन के अलावा पार्टी जियालों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। रियाज से उमर अली की ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली तकरीब में मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को खराजे अकीदत पेश किया। मुकर्ररीन का कहना था कि बेनजीर भुट्टो शहीद अपने नाम की तरह बेनजीर थीं और हमें मोहतरमा के विजन को आगे बढ़ाने की जदोजहद करनी होगी ताकि जमहूरियत मजबूत हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी ने कहा कि मोहतरमा शहीद का मिशन जारी है और पीपल्स पार्टी का हर जियाला इस पर अमल पैरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद का विजन लेकर आगे चलती रहेगी, लेकिन नॉन वायलेंस, हमारे यहाँ तशद्दुद नहीं है। तकरीब से रियाज राठौर, फरा एहसन, वसीम साजिद, समेरा वसीम, सरदार अब्दुल रज़ाक, राना अदील, एजाज रहीम और दीगर ने भी खिताब किया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर कोहदा बाबर बरतानिया के दौरे पर हैं। उन्होंने ओल्डहम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा CPAC मंसूबे पर मीडिया को ब्रीफिंग दी और मीडिया के सवालों के जवाबात भी दिए। ओल्डहम से रिपोर्ट कर रहे हैं राजा वाजिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर कोहदा बाबर, जिनका ताल्लुक ग्वादर से है, आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं। उन्होंने ओल्डहम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहनाज सदीक और इमरान चौधरी के हमरा CPAC मंसूबे पर मीडिया को ब्रीफिंग दी। उम्मीद मुझे अल्लाह की ज़ात से यही है इंशाअल्लाह कि अगले 1-2 सालों में ग्वादर में इंडस्ट्रीज लगी हुई होंगी और लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए इनका कहना था कि ग्वादर के मंसूबे की बुनियाद 1958 में रखी गई थी और CPAC एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर दूसरे हजारों प्रोजेक्ट्स हैं। हमें सपोर्ट किया सर आगा खान ने और उन्होंने ग्वादर ख़रीदा। उस वक्त से हम जानते थे कि इसकी क्या अहमियत है। फिरोज़ खान नून के दौर से ही ग्वादर पोर्ट को बनाने का प्रोग्राम था और ग्वादर में 1958 से पहले, चूँकि मैं वहाँ रहता हूँ, उससे पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो ट्रांसशिपमेंट का काम करते थे। सेनेटर कोहदा बाबर का मजीद कहना था कि आप खुद ग्वादर आकर देखें ताकि आपको पता चले कि पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं भारतीय वज़ीर आज़म सिर्फ कश्मीर या पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए खतरा है। मोदी ने जो कानून भारत में मुसलमानों को दबाने के लिए बनाया है वही कानून उसके गले की हड्डी बन गया है। वो सऊदी अरब में कश्मीर कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे। इसी पर देखिए अदील रियाज की ये रिपोर्ट। जद्दा में कश्मीर कम्युनिटी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत महताब सरवर और चेयरमैन कश्मीर कम्युनिटी सरदार इशफाक ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर की तरक्की में ओवरसीज कम्युनिटी का बहुत अहम किरदार है। इस वक्त पूरी दुनिया में ओवरसीज कश्मीर की आवाज़ बने हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की आज़ादी भी जो है करीब है और जो कुछ अब हिंदुस्तान कर रहा है उसका एक आखिरी दमों पर जब होता है दुश्मन, वो फिर इस तरह की जो है ना गैर इंसानी जो है वो मज़ालिम जो है वो ज़ेर तसल्लुत तमाम पर ढाता है। तो मुझे यकीन है अपनी मसला फाज पर भी कि इंशाअल्लाह ताला वो जिस तरह से इसका मुकाबला कर रही हैं। राजा फारूक हैदर का कहना था कि इस वक्त भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत कर रहा है। हमें अपनी पाक फौज और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। वो हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी का वक्त बहुत करीब है और भारत बहुत जल्द टूट जाएगा। तकरीब से मलक जुल्फकार, DG प्राइम मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी कश्मीर कम्युनिटी सरदार वकास, नून लीग आज़ाद कश्मीर सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी राजा शमरोज और दीगर ने भी खिताब किया। मुस्लिम लीग नून UAE के सदर चौधरी मोहम्मद अल्ताफ की जानिब से साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की जमानत पर खुशी का इजहार किया गया है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग के तमाम रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर हुकूमत के पास उनके खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाए जाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दियारे गैर में बसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पाकिस्तान में बदलती हुई सियासत पर गहरी नजर रखे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर शदीद मुज़म्मत और जमानतों पर अदालती फैसले को सराहा जा रहा है। गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नून UAE के सदर चौधरी मोहम्मद अल्ताफ ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तानी सियासत पर खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी और जमानत पर रद्द-ए-अमल देते हुए उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह के हवाले से इनके पास कोई सबूत नहीं है। जिस वीडियो की बात करते थे वो किधर है? राना सनाउल्लाह को 6 माह जेल में रखा गया, इसका हिसाब कौन देगा? अजीब किस्म के लोग हैं, सियासत हर चीज़ में सियासत को फेरी हुई इन्होंने। राना सनाउल्लाह के मतलब इनके पास कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। पहले वजीर साहब कहते थे मेरे पास वीडियो है, अब कहते हैं वीडियो मैंने नहीं बोला, फुटेज बोला था। और खुदा के बंदे को खुदा का खौफ करो। एक आदमी के 6 महीने आपने जेल में रख के उसके 6 महीने बर्बाद किए हैं, अब उसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है या नैब है या कौन है उसका जिम्मेदार? एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर इजहार ख्याल करते हुए इनका कहना था कि एहसन इकबाल जैसा ईमानदार आदमी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। इन पर भी हुकूमत कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकती। एहसन इकबाल जैसा बंदा मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तान में दूसरा बंदा नहीं है। इतना शरीफ माँ बाप का बेटा और इतना लायक बच्चा है और उसको किया, और ये एक चीज़ साबित नहीं कर सकते उसके ऊपर।
मियां नवाज शरीफ की सेहत पर बात करते हुए चौधरी मोहम्मद इल्ताफ का कहना था कि इनकी दरख्वास्त है कि केक काटने के साथ साथ कारकुन इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ करें। मियां साहब को के लिए हमारे सब लोगों से अपील है कि उनके लिए दुआ करें, बजाय इसके कि केक शेक काटें या खुशी मनाएं, उनके लिए दुआ ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मियां साहब को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। फिर हम ज़बरदस्त तरीके से फिर केक भी काटेंगे और देगें भी पकाएंगे और उनकी खुशी भी मनाएंगे। भारत में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के हवाले से उनका कहना था कि मोदी गुजरात का कसाई है, उसने मुसलमानों का कत्लेआम किया है, मोदी वहाँ मुसलमानों के लिए जहन्नम बना रहा है, भारत मोदी के लिए खुद जहन्नम बन जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सवात में स्कूल के तलबा की हौसला अफजाई के लिए साइंस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में तलबा तालिबात ने और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखते हैं सवात से उबैद फजल की ये रिपोर्ट। सवात में बच्चों में साइंस तहकीक और स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए साइंस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। साइंस फेस्टिवल में तलबा ने मुख्तलिफ मॉडल्स पेश करके साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। फेस्टिवल में तलबा ने माहौलियाती आलूदगी से बचाव और कम खर्च बिजली पैदा करने समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाकर अपनी सलाहियतों का खूब इजहार किया। ये मैंने जो मॉडल बनाया है ऐसे ड्रेन का है, लोगों में ये एहसास उजागर कर दे कि हमें इसको रोकना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए और हमारे इर्द गिर्द माहौल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं बाकी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि इस तरह एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। अभी जो मैंने ये मॉडल बनाया है, मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी इससे कुछ सीखें। साइंस फेस्टिवल जैसी तालीमी सरगर्मियों के इनेकाद से जहाँ तलबा को अमली काम का मौका मिला, वहाँ इससे इनमें एतमाद भी पैदा हुआ। उबैद फजल, 92 न्यूज़, सवात। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।